السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ پیارے دوستو، ملک یمن میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ سوداگر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام احمد تھا، جو اپنی کہانی یوں بیان کرتا ہے: میرا وطن یمن ہے۔ میرے والد خواجہ احمد یمن کے بہت بڑے سوداگر تھے۔ ملک میں کوئی اور سوداگر ان کے برابر کا نہ تھا۔ اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور ایجنٹ خرید و فروخت کے لیے مقرر تھے۔ لاکھوں روپے نقد اور ملک کی چیزیں گھر میں ہر وقت موجود رہتی تھیں۔ میری بڑی بہن ایک سوداگر سے بیاہی جا چکی تھی اور اپنے شوہر کے پاس بڑے آرام سے زندگی گزار رہی تھی۔ باپ کی جائیداد کا مالک میرے سوا اور کوئی نہ تھا۔ میری پرورش بڑے لاڈ پیار سے ہوئی۔ لکھنے پڑھنے اور تجارت کے علاوہ سپاہ گیری بھی مجھے سکھائی گئی۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ میری 14ویں سال میں قدم رکھتے ہی ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ مجھے بہت صدمہ ہوا۔ میں دن رات رویا کرتا، کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ میرے والد کے 40ویں پر عزیزوں اور رشتہ داروں نے مجھے اپنے باپ کا جانشین بنا دیا اور تجارت میں دل لگانے کی ہدایت کی۔ میں نے اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے سامان اور دولت کو دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے فوراً دیوان خانے کو سجانے کا حکم دیا، نوکر رکھے، انہیں پوشاکیں بنوا کر دیں اور میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ ایک قیمتی مسند پر بیٹھ گیا۔ میں ایک بڑی جائیداد کا مالک تھا۔ بے شمار نقد روپیہ، چاندی سونے کی اینٹیں، موتیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں، جواہرات کے صندوق، غرض سب کچھ تھا۔ لیکن میری عمر ایسی نہ تھی کہ کھرے کھوٹے میں تمیز کر سکتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مفت خورے اور جھوٹے خوش آمدیوں نے مجھے گھیر لیا۔ آٹھوں پہر ان کے ساتھ محفل جمی رہتی اور دنیا جہان کی باتیں ہوتی رہتی۔ ان خود غرض دوستوں نے آہستہ آہستہ مجھے بری باتوں کی لت بھی لگا دی اور میں سوداگری بھول کر تماش بینی کا رسیا ہو گیا۔ نوکروں اور دوستوں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو انہوں نے بھی لوٹ مچا دی۔ جو جس کے ہاتھ پڑا وہ لے اڑا۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ میری ساری جائیداد ٹھکانے لگ گئی۔ دوست نوکر سب مجھے لوٹ کھسوٹ کر چلتے بنے اور کوئی میرا حال پوچھنے والا نہ رہا۔ جب 2-3 دن فاقے سے کٹے تو میں نے اپنی بہن کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ والدین کے مرنے کے بعد میں نے کبھی بہن کو خط تک نہیں لکھا تھا۔ جی تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس گھر کے سوا اور کوئی ٹھکانہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آخر کار شرم کو ایک طرف رکھ کر میں پیدل چل پڑا اور مصیبتیں جھیلتا ہوا ایک روز اپنی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بہت روئی اور میری حالت دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ میں شرمندگی کے مارے زبان سے ایک لفظ تک نہ کہہ سکا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ بہن نے جلدی جلدی نئے کپڑے نکالے، نہا دھو کر میں نے نئی پوشاک پہنی۔ اس نے ایک عمدہ سا مکان میرے رہنے کے لیے خالی کرا دیا۔ صبح کو ناشتہ اور دونوں وقت کھانا آ جاتا۔ میری بہن مجھے اپنے سامنے کھلاتی پلاتی اور ہر طرح سے میرا خیال رکھتی۔ کئی مہینے اسی طرح آرام سے زندگی بسر کرتا رہا۔ ایک بار بھی اس مکان سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ ایک روز بہن نے کہا، بھیا تم میرے باپ کی نشانی ہو۔ جب تمہیں دیکھتی ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، لیکن یوں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے رہنا اچھی بات نہیں۔ بہتر ہے کہ کہیں چلے جاؤ اور کوئی کام وغیرہ کرو۔ خدا نے چاہا تو جلد ہی تمہارے دن پھر جائیں گے۔ بہن کی یہ بات سن کر مجھے بھی غیرت آئی اور کہا، اب تم ہی میری ماں کی جگہ ہو، جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ بہن گھر میں گئی اور اشرفیوں کی 50 تھیلی لونڈیوں کے سروں پر رکھوا لائی اور کہنے لگی، تاجروں کا ایک قافلہ ملک شام کے دارالحکومت دمشق کو جا رہا ہے۔ تم بھی سامان خرید کر انہیں دے دو اور معاہدہ لکھوا کر ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ دمشق پہنچ کر اپنا مال منافع کے ساتھ ان سے وصول کر لینا۔ میں بازار گیا اور بہت سارا مال خرید کر ایک سوداگر کے حوالے کر دیا۔ وہ تاجر جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ میں نے خشکی کے راستے سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ بہن کو خدا حافظ کہہ کر میں گھوڑے پر سوار ہوا اور خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے
घोड़े को दौड़ाता हुआ तेजी के साथ दमिश्क जा पहुंचा। जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। शहर का दरवाजा सिपाहियों ने बंद कर दिया था। मैंने पहरेदारों की बहुत खुशामद की कि मुसाफिर हूं और दूर से आ रहा हूं, लेकिन उन्होंने मुझे साफ जवाब दे दिया और बोले, हमें इस वक्त दरवाज़ा खोलने का हुक्म नहीं। मैंने मजबूर होकर अपना घोड़ा शहर की दीवार के साथ बांध दिया और ज़ेन पोशाक ज़मीन पर बिछाकर बैठ गया। फिर मैं सोचने लगा कि यहाँ सोना अक्लमंदी के खिलाफ है। मैं उठा और इधर उधर टहलने लगा। जब आधी रात हुई तो क्या देखता हूँ कि एक संदूक शहर की दीवार के नीचे लटक रहा है। मैं समझा कि शायद खुदा ने मेरे हाल पर रहम खाकर किसी गैब से खजाना अता किया है। जब वो संदूक ज़मीन पर आकर ठहरा तो मैं हिम्मत करके पास गया। संदूक का ढक्कन खोला तो मैं कांप गया। संदूक के अंदर एक खूबसूरत औरत खून में लथड़ी हुई सिसक रही थी। उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। मैंने कान लगाकर सुना। वो कह रही थी, धोखाबाज गद्दार, क्या भलाई का बदला यही हुआ करता है। मैं उसकी हालत देखकर सर से पांव तक कांप गया। फिर भी मैंने हौसला करके उससे पूछा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर उस औरत ने मरी हुई आवाज में कहा, मैं किसी घड़ी की मेहमान हूँ। मैं मर जाऊं तो मुझे संदूक समेत कहीं दफन कर देना। उस वक़्त मैं क्या कर सकता था। संदूक को उठाकर ले आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। वो छोटी सी रात मुझे पहाड़ जैसी लगी। मेरा दिल बहुत घबराया। खुदा खुदा करके सुबह हुई और शहर का दरवाज़ा खुला। मैं संदूक को घोड़े पर लाद कर शहर में दाखिल हो गया और एक कुशादा मकान किराए पर लेकर मैं उसमें जा ठहरा। पहले उस जख्मी औरत को संदूक से निकाला और रुई का गद्दा बिछाकर उस पर लिटा दिया। इत्तेफाक से एक समझदार नौकर भी मुझे मिल गया। मैं नौकर को यहाँ छोड़कर खुद जरा की तलाश में निकला। पूछते पूछते एक मशहूर जरा का पता मिल गया। उसका नाम ईसा था। मैं तलाश करते करते ईसा जरा के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी थी। कई आदमी उसके पास बैठे मरहम वगैरह तैयार कर रहे थे। मैंने अदब से सलाम किया और पूछा, मैं आपकी शोहरत सुनकर हाजिर हुआ हूँ। असल में माजरा ये है कि मैं अपने मुल्क से तिजारत के लिए चला था। मेरी बीवी मेरे साथ थी। जब इस शहर के नज़दीक आया तो रात हो चुकी थी। मैं एक पेड़ के नीचे ठहर गया। रात को डाकुओं ने मुझ पर हमला किया। सारा माल असबाब लूट गया और मेरी बीवी जख्मी हो गई। अब मैं उसे यहाँ ले आया हूँ। खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए और मेरे घर तक तशरीफ़ ले चलिए। ईसा जरा बहुत रहमदिल था। फौरन मेरे साथ चल पड़ा। ईसा जरा ने औरत के जख्मों को देखते ही मुझे तसल्ली दी कि खुदा के फजल से इस बीबी के जख्म 40 दिन में ठीक हो जाएंगे। फिर इसने जख्मों को साफ करके मरहम पट्टी की और नहायत शफकत से कहने लगा, घबराना नहीं, मैं दोनों वक्त आकर देख जाया करूँगा। मैंने बड़ी एहतियात से इस औरत की देखभाल शुरू कर दी। हर वक्त खुदा से इसकी तंदुरुस्ती की दुआएं मांगता। इस दौरान वो सौदागर भी आ पहुंचा और मेरा माल इसने मेरे हवाले कर दिया। मैंने तमाम माल औने पौने दामों बेच डाला और उससे जो रकम मुझे मिली मैं उस औरत के इलाज पर खर्च करने लगा। ईसा जरा की तवज्जो से उसके जख्म भर गए और फिर एक दिन इसने गुस्ल किया। उसकी तंदुरुस्ती मेरे लिए खुशी का बाइस थी। मैंने ईसा जरा को इनाम में अशरफियाँ दी। गरीबों और फकीरों में बहुत सी खैरात बांटी। अब मैं भी इस औरत की खिदमत कर रहा था। हर वक्त मैं हाजिर रहता। जो वो कहती मैं फौरन करता। उसने मुझे हिदायत कर दी थी कि मैं जो कुछ कहूँ उसको फौरन पूरा किया जाए। वो जो भी हुक्म दे उसको बिला उज़र बजा लाओ। किसी बात में दखल ना देना वरना पछताओगे। चुनाचा काफ़ी अरसा इसी हाल में गुजर गया। आखिरकार मेरी सारी दौलत ख़त्म हो गई और मामूली अखराजात को पूरा करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया। परदेश में किसी से कर्ज भी नहीं मिल सकता था। मैं हर वक्त परेशान और चुप चुप रहने लगा। इस औरत ने मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लिया। एक दिन कहने लगी, तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है। इस वक्त तो हम इसका बदला नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें खर्च के लिए रकम दरकार हो तो तुम कोई फिक्र ना करना। ज़रा कलम दवात और कागज़ मुझे दो। उसकी बात करने के तरीका मैंने समझ लिया कि ये औरत ज़रूर किसी मुल्क की शहज़ादी है। कागज़ कलम देकर
मैं अदब से उसके सामने खड़ा हो गया। इसने खत लिखा और मुझे देते हुए कहने लगी, किले के पास गली में एक बड़ी सी हवेली है, इसके मालिक का नाम सैयदी बहार है, तुम जाकर ये खत सैयदी बहार को दे आओ। मैं पूछता पूछता बहार के मकान तक जा पहुंचा और दरबान को इत्तला दी। इत्तला होते ही अंदर से एक हबशी बाहर आया और मुझसे खत लेकर चला गया। थोड़ी देर में शरीफियों की बहुत सी थैलियां गुलामों के सर पर रखवाकर वापस आया और उन्हें मेरे साथ जाने का हुक्म दिया। गुलाम मेरे साथ हो लिए। घर पहुंचकर मैंने शरीफियां इस औरत की खिदमत में पेश की। उसने देखकर बड़ी बेपरवाही से कहा, इनका मैं क्या करूंगी, तुम इनसे अपना खर्च चलाओ। मैं इन शरीफियों को अपनी ज़रूरत की चीज़ों में खर्च करने लगा, लेकिन दिल में हैरान हुआ कि इस हबशी ने ज़रा से पर्चे को देखकर मुझे इतनी सारी अशरफियाँ दे डालीं। नामालूम इसमें क्या राज है। जी चाहता था कि इस औरत से पूछूं, लेकिन वो तो पहले ही मना कर चुकी थी, इसलिए मजबूर होकर मैं खामोश हो गया। कोई एक हफ्ते के बाद की बात है कि वो औरत कहने लगी, आदमी की इंसानियत लिबास से कम या ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन अच्छे लिबास से इसका एतबार ज़रूर बढ़ जाता है। 2 थैलियाँ शरीफियों की ले जाओ। चौक में यूसुफ सौदागर की दुकान है, वहाँ से अपने लिए कुछ हीरे जवाहरात और 2-4 कीमती लिबास खरीद लाओ। मैं उसी वक्त यूसुफ की दुकान पर पहुंचा और क्या देखता हूँ, एक खूबसूरत नौजवान निहायत कीमती लिबास पहने गद्दी पर बैठा है। मैंने पास जाकर सलाम किया और जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उससे तलब की। यूसुफ ने मेरी बातों से अंदाज़ा लगा लिया कि मैं दमिश्क का रहने वाला नहीं हूँ। उसने बड़ी नरमी से मेरे हालात दरियाफ्त किए। मैंने इधर उधर की बात बनाकर उसे टाल दिया। जवाहरात और लिबास लेकर उसकी कीमत अदा की और इजाज़त चाही, लेकिन उसने मुझे रोक लिया और बड़े इसरार के साथ कहने लगा, शाम का खाना मेरे पास खाइए। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो एक ना माना और उसने मुझसे वादा लेकर ही छोड़ा। अब तक मैंने इस औरत को कभी घर में अकेला नहीं छोड़ा था, इसलिए सोचता था कि सौदागर की दावत में ना जाऊं। लेकिन जब इस औरत ने तमाम हालात मुझसे सुने तो कहने लगी, तुम्हें अपना वादा ज़रूर पूरा करना चाहिए, मेरी फिक्र ना करो। जैसे ही मैं यूसुफ की दुकान पर पहुंचा, वो दुकान से उठा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक बाग में ले गया। निहायत खूबसूरत बाग था, हर तरफ फूल खिले थे, होश में फवारे छूट रहे थे। बाग के दरमियान में एक मकान था, वहाँ यूसुफ ने मेरी निहायत शानदार दावत की। दावत के बाद चंद गवैये आ गए और गाने बजाने का शुगल होने लगा। फिर यूसुफ ने मेरे कान में कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं यहाँ अपनी लोंडी को भी बुलवा लूँ। मेरे हाँ कहने पर इसने इशारा किया। फौरन ही दरवाजे की चिलमन हटी और एक काली कलोटी औरत यूसुफ सौदागर के पास आ बैठी। 3 दिन और रात यूसुफ ने मुझे अपना मेहमान रखा और बराबर राग रंग की महफिल चलती रहती। चौथे दिन मैंने इजाज़त चाही और अपने घर आ गया और उस औरत को 3 दिन गैर हाजिर रहने की वजह बताई। वो औरत हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं। फिर इस औरत ने मुझसे कहा कि अब तुम यूसुफ की दावत करो और इस दावत पर जो भी खर्च आएगा उसका बंदोबस्त मैं करूंगी। चुनाचा मैं यूसुफ सौदागर के यहाँ गया और उसे खाने की दावत दी। मामूली इसरार के बाद इसने मेरी दावत कबूल कर ली। मैं यूसुफ को साथ लेकर घर की तरफ चला। मैं दिल में सोच रहा था कि मेरे बस में होता तो यूसुफ की ऐसी आओ भगत करता कि वो खुश हो जाता। ना मालूम इसकी शान के मुताबिक सारा इंतज़ाम भी हो सकेगा या नहीं। यही सोचता हुआ जब घर के नज़दीक पहुंचा तो वहां अजीब धूमधाम देखी। घर बाहर और अंदर से दुल्हन की तरह सजा हुआ था। साफ सुथरा फर्श बिछा हुआ था, जगह जगह खिदमतगार अदब से खड़े थे। थोड़ी देर तक तो मुझे यकीन न आया कि ये मेरा घर है, लेकिन आखिर यकीन करना पड़ा। दिल में हैरान था कि इस औरत ने थोड़ी सी देर में इतने शाहाना बंदोबस्त कैसे कर लिए। मैंने यूसुफ को ले जाकर एक मसनद पर बिठाया और अंदर चला गया। वो औरत खाना पकाने वालों की निगरानी कर रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, तुम मेहमान को अकेला छोड़कर क्यों चले आए? चलो चलकर उसके पास बैठो और उसकी लोंडी को भी बुलवा लो। मैं फौरन वापस यूसुफ के पास जा बैठा। हम दोनों बातें करने लगे। मैंने कहा, अगर आपका हुक्म हो तो आपकी लोंडी को भी यहाँ बुलवा लिया जाए ताकि आप दोनों इस दावत का लुत्फ़ उठा सकें।
यूसुफ तो दिल से यही चाहता था। सवारी भेजी गई और आधी रात के वक्त यूसुफ की लोंडी भी वहां आ गई। मैंने भी 3 दिन और रात यूसुफ की दावत की। उस दावत का इंतजाम यूसुफ से कहीं बढ़ चढ़ कर था। यूसुफ भी दंग रह गया। गाने वालों ने ऐसे ऐसे कमाल दिखाए कि वो खुशी से झूम गया। रात भर जागने की वजह से सुबह को देर से आंख खुली तो क्या देखता हूं कि हवेली खाली पड़ी है। एक कोने पर कंबल लिपटा पड़ा था। उसे जो खोल कर देखा तो बदन का रुआं रुआं खड़ा हो गया। उसमें यूसुफ और उसकी लोंडी की लाशें थीं। दोनों के सर धड़ से जुदा थे। डर के मारे मेरा अजीब हाल हो गया। चुपचाप खड़ा इधर उधर देखने लगा। इतने में ख्वाजा सरा, जो दावत के इंतजाम में शामिल था, सामने से आता दिखाई दिया। मैंने उससे माजरा पूछा तो वो माथे पर बल डालकर बोला, तुम पूछने वाले कौन होते हो? उसकी बात सुनकर मेरा सर चकराने लगा। मैंने कहा, यह तो बताओ वो औरत कहाँ है, खैरियत से तो है? उस पर ख्वाजा सरा बोला, सब्र करो, जो कुछ मुझे मालूम है तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर इसने मुझे उस औरत के मकान का पता बताया। मुझे वहां से रुखसत कर दिया और खुद वहीं ठहर गया ताकि दोनों लाशों को ठिकाने लगा सके। मैं शाम के वक्त उस औरत के महल के करीब पहुंच गया। अंदर तो जा ना सका, वहीं एक तरफ खड़ा हो गया। सुबह हुई तो खिड़की खुली और इस औरत ने सर निकाल कर झांका। मैं उसे देखकर खुश हो गया, लेकिन इसने मुझसे कोई बात न की। इतने में ख्वाजा सरा अंदर से निकलकर मेरे पास आया और कहने लगा, मियाँ, बराबर वाली मस्जिद में चले जाओ। मैं दिन भर मस्जिद में बैठा रहा। शाम को वही ख्वाजा सरा आया जिसने इस औरत के मकान का पता दिया था। वो मुझे अपने साथ एक बाग में ले गया। बाग बड़ा खूबसूरत था। ख्वाजा सरा मुझे वहां बिठाकर खुद अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो औरत ख्वाजा सरा के साथ आई। ख्वाजा सरा ने मेरी सिफारिश के तौर पर चंद अल्फाज कहे। वो औरत बोली, अब इसके हक में यही भला है अपना माल असबाब समेटे और अपने वतन को लौट जाए। अशरफियों की 100 थैलियां से देकर यहाँ से रुखसत कर दिया जाए। ये कहकर वो गुस्से भरी नजरों से मुझे देखते हुए वहां से चली गई। फिर मैंने उसे नहीं देखा। मैं दिन भर शहर में मारा मारा फिरता रहा। शहर से उकता जाता तो जंगल की तरफ निकल जाता। वहां से घबराता तो फिर शहर की गलियों में दीवानों की तरह फिरने लगता। मेरा खाना पीना छूट गया। रातों की नींद हराम हो गई और थोड़े ही दिनों में मैं सूख कर कांटा हो गया। जब चलने फिरने की ताकत ना रही तो उसी मस्जिद की दीवार तले जा पड़ा। एक रोज वही ख्वाजा सरा जुमे की नमाज पढ़ने आया। जब वो मेरे करीब से गुजरा तो मैंने उसे आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर ख्वाजा सरा ने मुझे पहचान लिया और मेरी हालत देखकर अफसोस करने लगा। उसे मुझ पर तरस आया और मुझे एक डोली में डालकर उस औरत के महल में ले गया। उस औरत ने पूछा, ये तुम किसे उठा लाए हो? ख्वाजा सरा ने हाथ बांध कर अर्ज किया, हुजूर, ये वही बदनसीब है, आपकी नाराजगी की वजह से बेचारे का ये हाल हो गया। उस औरत ने मेरी तरफ गौर से देखा, ख्वाजा सरा को रुखसत कर दिया और मुझसे बोली, तुमने हमारी बहुत खिदमत की है, हम उसको भुला नहीं सकते। ये सुनकर मेरे चेहरे पर रौनक आ गई, जैसे सूखे दानों पर पानी पड़ जाता हो। उसी रोज हम दोनों की शादी हो गई और हम आराम से जिंदगी बसर करने लगे। लेकिन अब तक मुझे अपनी बीवी के मुतालिक कुछ मालूम नहीं था कि वो कौन है, वो हबशी कौन था जिसने अशरफियों की थैलियां दी। मेरे यहाँ इतनी शानदार दावत का इंतजाम किस तरह हुआ, यूसुफ और उसकी लौंडी को किसने कत्ल किया और मेरी बीवी मुझसे किस बात पर इतनी नाराज हो गई थी कि मेरी सब खिदमत गुजारी को भुला दिया। आखिर एक रोज मैं दिल की बात जुबान पर ले आया और उससे बोला, मुझे तमाम हालात से आगाह करो। अब तो हम मियाँ बीवी हैं, कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपानी चाहिए। पहले तो इसने तरह तरह से टाला, लेकिन मैं ना माना और अपनी बात पर अड़ा रहा। तो वो कहने लगी, मैं डरती हूँ कि मेरे हालात सुनकर कहीं तुम मुझसे नफरत न करने लगो। मैंने जवाब दिया, मेरी तरफ से ऐसा ख्याल भी तुम्हारे दिल में नहीं आना चाहिए। इत्मीनान रखो, तुम्हारा कोई राज किसी पर जाहिर नहीं होने दूंगा। जब उसने देखा कि बताए बगैर बात नहीं बनती तो उसने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। मैं दमिश्क के बादशाह की इकलौती बेटी हूँ। मेरे परवरिश बड़े लाड प्यार से हुई।
दुनिया की हर चीज मुझे मैसर थी, लेकिन अचानक मेरा जी ऐश और आराम से उकता गया। सौदाई सा मिजाज हो गया, दिल उदास रहने लगा। ना किसी की सूरत अच्छी लगे, ना किसी से बात करने को जी चाहे। मेरी ये हालत देखकर सब फिक्रमंद हुए। फिर एक रोज इसी ख्वाजा सरा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक शरबत तैयार करवा के लाता हूँ, उसके पीने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। ख्वाजा सरा गया और थोड़ी देर बाद एक लड़के को ले आया जिसके कांधे पर शरबत की सुराही रखी हुई थी। शरबत पीकर मेरी तबीयत बहुत खुश हुई। उसके बाद रोज का ये मामूल बन गया कि वो लड़का शरबत की सुराही लेकर आता और मैं पी जाती। शरबत पीने के बाद जी चाहता कि किसी से खूब हंस हंस कर बातें करूं। मैं उस लड़के को ही अपने पास बिठा लेती और उससे बातें करती रहती। लड़का भी खुश होकर मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगा और मैं उसे हर रोज कुछ ना कुछ इनाम देने लगी। एक रोज मैंने उस लड़के से कहा, हमने तुम्हें इनाम में बहुत कुछ दिया है, मगर तुम जैसे पहले थे वैसे ही अब हो, वो ही मेले कुचेले कपड़े पहने फिरते हो। उसने रोकर जवाब दिया, जो कुछ आपने दिया वो सब मेरे उस्ताद ने ले लिया, मुझे एक पैसा नहीं मिला, कपड़े कहाँ से बनाऊं? मैंने उसी वक्त ख्वाजा सरा को बुलवाया और हुक्म दिया कि लड़के को अपने पास रखो और अच्छी तरह से इसकी तरबियत करो। ख्वाजा सरा ने लड़के की बड़ी देखभाल की, उसे खूब लिखाया पढ़ाया, अच्छी अच्छी पोशाकें पहनाई और खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मुहैया की। ख्वाजा सरा की इस तरबियत की वजह से वो लड़का देखते ही देखते कुछ से कुछ हो गया और उसका चेहरा कुंदन की तरह दमकने लगा। मैं उसे हर वक्त अपने पास बिठाए रखती, उसके साथ बातें करती। जब वो जवान हुआ तो पहरेदार उसे महल में आने जाने से रोकने लगे। मैंने कुछ सोचकर फिर ख्वाजा सरा को बुलाया और कहा, इस नौजवान को 1000 अशरफियाँ देकर चौक में जौहरी की दुकान खुलवा दो और मेरे महल के करीब एक अच्छी सी हवेली इसके रहने के लिए बनवा दो। कुछ दिन बाद मैं अपने माँ बाप से कह सुनकर उसके साथ शादी कर लूँगी। ख्वाजा सरा ने तमाम काम इतनी खूबी से अंजाम दिए कि किसी को कानों कान खबर ना हुई। नौजवान की दुकान बहुत जल्द चमक उठी और देखते ही देखते बाकी तमाम जौहरियों का कारोबार उसके आगे मंदा पड़ गया। दरबार में माल असबाब आता था, वो उसी की दुकान से आता था। अब मुझे इस बात की फिक्र हुई कि किसी तरह वो नौजवान फिर मेरे पास आया जाया करे। जब और कोई सूरत नजर न आई तो फिर ख्वाजा सरा से कहा। ख्वाजा सरा ने मेरे महल से नौजवान की हवेली तक एक सुरंग बनवा दी। शाम होती ख्वाजा सरा उस नौजवान को मेरे महल में ले आता। काफी अरसा इसी तरह गुजर गया। एक रोज वो नौजवान आया तो बहुत उदास और चुपचाप था। जब मैंने माजरा पूछा तो वो बोला, मेरी हवेली के साथ एक बाग है जो बिक रहा है, उस बाग के साथ एक लोंडी भी है, मालिक दोनों को इकट्ठा बेचना चाहता है। जो कोई बाग को खरीदे तो उसे लोंडी की कीमत भी अदा करे। दोनों की कीमत 5-6 लाख दिरहम है और मुझे इतनी रकम अदा करने की हिम्मत नहीं। ये सुनकर मैंने उसी ख्वाजा सरा को हुक्म दिया, कल सुबह इस बाग और लोंडी की कीमत अदा करके बाग और लोंडी इस नौजवान के हवाले कर दी जाएं। मेरी ये बात सुनकर नौजवान खुश हो गया। रात हंसी खुशी कटी। फजर के वक़्त वो रुखसत हुआ। ख्वाजा सरा ने मेरे हुक्म के मुताबिक वो बाग और लोंडी खरीद कर उसके हवाले कर दी। उसके बाद वो नौजवान मेरे महल में आता जाता रहा। एक शाम मेरे जी में लहर आई कि चलकर नौजवान के उस बाग की सैर तो करनी चाहिए। ये सोचकर मैंने खादमा को साथ लिया और सुरंग के रास्ते नौजवान के बाग में जा पहुंची। बाग क्या था, सचमुच बहिश्त का नमूना था। मैं खुश होकर सैर करने लगी। इतने में वो नौजवान एक रविश पर दिखाई दिया। इसने करीब आकर सलाम किया और मेरा हाथ थामकर बारादरी की तरफ ले चला। कुछ देर हम वहां बैठे रहे। फिर वो नौजवान बोला, अब जरा छत पर चलकर चांदनी का लुत्फ उठाइए। ये छत बहुत ऊंची थी, सारे का सारा शहर वहां से दिखाई देता था। हम दोनों वहां बैठे बातें कर रहे थे कि एक औरत सुराही हाथ में लिए इस तरफ आई। इस औरत की सूरत देखकर मुझे डर लगा। मैंने घबरा कर पूछा, ये बला कहाँ से आई? नौजवान ने कहा, सरकार ये वही लोंडी है जो हजूर ने बाग के साथ मेरे लिए खरीदी है। उस औरत ने आगे बढ़कर सुराही से शरबत का गिलास भरकर नौजवान को पेश किया और फिर मुझे भी दिया। मैंने गिलास एक तरफ रख दिया।
लेकिन नौजवान गिलास पर गिलास चढ़ाने लगा और फिर इसने लोंडी को भी अपने पास बिठा लिया। मैं समझ गई कि इस शख्स ने लोंडी के साथ शादी कर ली है। मैं मारे गुस्से के उठ खड़ी हुई। नौजवान ने जो मेरे गुस्से को देखा तो डर गया। उसने फौरन उठकर मेरे पांव पकड़ लिए। अपनी चिकनी चपड़ी बातों से मुझे मना करके उसने फिर वहीं बिठा लिया। फिर इसने अपने हाथ से मुझे शरबत का गिलास पिलाया। इसमें खुदा जाने क्या मिला हुआ था कि मुझ पर बेहोशी तारी हो गई। ये देखकर नौजवान ने तलवार से मुझ पर वार करना शुरू किए और अपने ख्याल में उसने मुझे मार डाला। मैं मरी तो नहीं थी, लेकिन गश खाकर गिर पड़ी। उसने मुझे मुर्दा समझकर संदूक में बंद करके शहर की दीवार पर लटका दिया। कुदरत को मेरी जान लेनी मंजूर न थी। इसने मेरी मदद के लिए तुम्हें भेज दिया। तुम्हारी मेहनत रंग लाई और मैंने तुम्हारी खिदमत से नई जिंदगी पाई। जब तुम खर्च की तरफ से परेशान हुए तो मैंने अपने खजांची सैयदी बहार को पर्चा लिख दिया और अपने पते से भी आगाह कर दिया। तुम ये तो जान ही गए हो कि ये नौजवान यूसुफ जोरी के सिवा कोई और नहीं था। अब मैं उससे बदला लेना चाहती थी। मैंने तुम्हें उसकी दुकान पर भेजा। मुझे मालूम था कि वो हर एक से बहुत जल्द बेतकल्लुफ हो जाता है। इसने जान पहचान होते ही तुम्हारी दावत कर डाली। तुम दावत से वापस आए तो मैंने तुम्हें उसकी दावत करने का मशवरा दिया। उधर तुम यूसुफ को बुलाने गए, इधर मैं महल में अपनी वालदा के पास गई। दावत का इंतजाम तुमने देखा, वो सब उन्हीं का किया हुआ था। जब यूसुफ और उसकी लोंडी दोनों सो गए तो मैंने उन्हें कत्ल करवा दिया। लेकिन तुम्हारी ये हरकत मुझे सख्त नापसंद हुई कि तुम यूसुफ के साथ इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो गए और मामूली सी जान पहचान की बिना पर मेरे जानी दुश्मन को अपना दोस्त बना बैठे। इस वजह से मेरे दिल से तुम्हारा एतबार उठ गया था। शहजादी अपनी आप बीती बयान करने के बाद मेरी तरफ देख रही थी, जैसे उसे मेरा फैसला सुनने का इंतजार हो। मैं बोला, शहजादी, तुम्हारा जो हुक्म होगा मैं हर तरह से बचा लाऊंगा। उस पर शहजादी बोली, तुम मेरी दास्तान तो सुन चुके हो। अब मेरी राय ये है कि हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने जवाब दिया, तुम्हारा हुक्म मेरा फर्ज है। तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। शहजादी ने शाही अस्तबल से अच्छी नस्ल के 2 घोड़े मंगवाए। जब थोड़ी सी रात बाकी थी तो उसने मर्दाना लिबास पहना, जिस्म पर हथियार लगाए। एक घोड़े पर मैं सवार हुआ और दूसरे पर शहजादी सवार हुई और हम अपने मुल्क की तरफ चल पड़े। जंगल, दरियाओं, बियाबानों, सहराओं को अबूर करते हुए आखिरकार हम अपने मुल्क पहुंच गए। शहजादी की दी हुई दौलत से मैंने फिर अपने मुल्क में कारोबार शुरू किया और एक बार फिर अपने वालिद की तरह कामयाब ताजिर हो गया और हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।